Good morning, children. Hope you all are enjoying your studies, online studies. Children, in chapter first of science, we had studied about the food and digestion. Now, you all know food is taken in through mouth, and in mouth we have teeth. So, very befittingly, chapter 2 of your syllabus is teeth and microbes. Now, in this chapter, we will be first studying about temporary and permanent teeth, then different kinds of teeth, structure of a tooth, caring for teeth, and then microbes. Right? But firstly, let me draw your attention towards this picture of a child here. See how happy and how beautiful he looks when he smiles, and in his smile, his beautiful white and clean teeth are visible. Right? Because it is the first place where the food enters. So it becomes very important for us to know about the teeth and how to take care of them. Right? Please follow each and every detail as I discuss the chapter with you all. Now, in this, there are few terms. First, incisors, which are the sharp teeth that are used for cutting and biting the food. Then, canines, sharp and pointed teeth that are used for tearing food. Premolars, flat teeth that are used for crushing food. Molars, flat and broad teeth that are used for grinding food, and then dentine, hard inner substance of the tooth. In details, we will be discussing these in the chapter. Now, we begin with what is about teeth. Teeth are very important part of our body. They help to bite and chew the food. So, दांत हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू द food, right? Now the second function, they not only help to speak clearly but also give proper shape to the face. So the second function is they help us to speak clearly, and then third, they give a proper shape to the face, right? So these are the three functions of the teeth. They bite and chew the food, help to speak clearly, and give a proper shape of the face. They are firmly anchored in bony sockets in the upper jaw and lower jaw. और ये जो टीथ होते हैं ये अपने इनको फिट करने के लिए सॉकेट बने हुए हैं हमारे माउथ में, अपर एंड लोअर माउथ में, जिसे जॉ कहते हैं, जबड़ा, और ये वहाँ पे टीथ फिट होते हैं, राइट? ओके, सो नाउ वी मूव ऑन to the next point, which is temporary and permanent teeth. Here, a newborn baby has no teeth. A baby gets its first tooth when it is around 6 months old. By the time it is 2.5 years old, it has 20 teeth, right? So he gets एक बेबी का फर्स्ट टूथ कब होता है? when he is around 6 months, and when he is of 2.5 months here, when he is of 2.5 years old, it has 20 teeth, right? These are called milk teeth or temporary teeth. Means the first set of teeth, which are the temporary teeth, ये एक बच्चे में कब आते हैं? जब वो 2.5 years का हो जाता है, right? Now, between the age of 6 and 12, the milk teeth fall out one by one and new one grow in their place. This new set consists of 32 teeth, 16 in upper
and 16 in lower jaw. These are called permanent teeth. That means in between द एज ऑफ 6 साल का बच्चा होता है से लेकर के 12 साल के बीच में ये सारे मिल्क टीथ जो है टूट के खुद ब खुद गिर जाते हैं, और अब एक नए सेट ऑफ टीथ आता है जिसमें 32 दांत होते हैं, 16 अपर जॉ में, 16 लोअर जॉ में, और इनको कहते हैं हम परमानेंट टीथ. ओके, नाउ वी मूव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, राइट. और इनके बारे में हम शुरू में पढ़ भी चुके हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन माउथ. द फर्स्ट इज इंसिजर्स. इंसिजर्स, इससे आपके दिमाग में एक वर्ड और आ रहा होगा, सिजर यानी कैंची. कैंची का काम क्या होता है? कटिंग. तो बिल्कुल सही आपने समझा. इंसिजर्स का भी फंक्शन, दे आर 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ. हमारे सबसे सामने के ऊपर और नीचे जो जबड़े हैं इसमें जो 4 दांत होते हैं, इनको हम इंसिजर्स कहते हैं, राइट. एंड दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे हैव शार्प एजेस. ऊपर और नीचे सामने के 4 दांत, और इनका काम कटिंग एंड बाइटिंग फूड, और इनके होते हैं शार्प एजेस, राइट. दीज आर इंसिजर्स. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट विच इज कैनाइन्स, राइट. कैनाइन्स, ओके. दे आर 2 इन ईच जॉ, राइट. हर जॉ में ये 2 होते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इंसिजर्स. ये जो सामने के 4 दांत हैं, इनके बगल में देखिए एक नोकीला सा दांत होता है, ये कैनाइन्स होते हैं, राइट. दे आर शार्प एंड पॉइंटेड एंड दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड, राइट. तो कैनाइन्स क्या होते हैं? ये 4 जो सामने के दांत हैं, इनके अगल बगल के नुकीले वाले दांत होते हैं कैनाइन्स. दे आर शार्प एंड पॉइंटेड एंड दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड, राइट. सी हियर, ये डायग्राम को बहुत ध्यान से समझिए, राइट. बहुत ध्यान से. ये देखिए, सामने में इंसिजर्स, देन कैनाइन्स, देन मोलर्स, एंड देन प्रीमोलर्स, एंड लास्टली molars, right children? Okay, now we move ahead. Premolars, they are 4 in each jaw, right. तो प्रीमोलर्स जो हैं ये हर जॉ में 4 पाए जाते हैं, 2 each on either side of the incisors, right. It should be canines, so right here canines. These are flat in shape and are used for crushing food, right. They act like a nutcracker. ठीक है, ये सीक्वेंस में पहले इंसिजर्स हुए, फिर कैनाइन हुआ, फिर प्रीमोलर आएगा, और लास्ट में दे आर फ्लैट इन शेप एंड दे आर फॉर क्रशिंग फूड, राइट. ओके, एंड लास्ट होते हैं मोलर्स. ठीक चिल्ड्रन, मोलर्स. जस्ट अ मिनट. और इनका काम क्या है? ग्राइंडिंग फूड, चबाना. ये भी फ्लैट होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और ये 6 इन ईच जॉ, मतलब 3 ऊपर भी 6 होंगे, 3 दोनों तरफ, और नीचे भी 6 होंगे, 3 दोनों तरफ, राइट. तो हम लोग ने देखा कि हमारे पास टीथ 2 तरीके के होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट, राइट. टेम्परेरी कब आता है? राइट, व्हेन द बेबी इज 6 मंथ ओल्ड, 20 होते हैं. परमानेंट कब आएगा? जब बच्चा 6 साल से 12 साल के बीच में होता है और ये टेम्परेरी टीथ गिरते हैं, देन. और ये 32 होते हैं, 16 इन ईच जॉ. 4 काइंड्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, राइट. इंसिजर्स का काम होता है कटिंग एंड बाइटिंग. कैनाइन्स, इनका काम होता है टीयरिंग करना फूड को. नॉन वेजिटेरियंस में कैनाइन्स बहुत शार्प होते हैं. प्रीमोलर्स, इनका काम होता है क्रशिंग ऑफ फूड. एंड देन मोलर्स विच आर 6,
इनका काम होता है ग्राइंडिंग फूड, राइट। दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी, ये क्रॉसवर्ड है आपको, ये यू हैव टू डू दिस, दिस इज अ टेबल हियर, ये आपको ये टेबल याद करना है, राइट। ये टेबल आपको याद करना है, ठीक है चिल्ड्रन, ओके। I think we should stop here, right? We should stop here. Now, so आपने क्या क्या पढ़ लिया अभी about the teeth? टीथ का रोल क्या है? टीथ, ओके, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ होते हैं दो तरीके के, और टीथ भी जो होते हैं इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं, और ये एक सीक्वेंस में आते हैं, राइट। ओके, नाउ वी मूव टू द structure of a tooth, right. Although the shape and size of teeth varies from one individual to the other, but their internal structure remains the same. टीथ का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, बट अंदर से टीथ सारे एक जैसे हैं, राइट। तो देर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द टूथ, वन इज क्राउन, द अदर इज रूट। बेसिकली क्राउन वो होता है जो दांत का हिस्सा हमें नज़र आता है, और रूट वो होता है जो जबड़े के अंदर होता है जो हमें नज़र नहीं आता, right. Crown, the part that is visible, and root, the part inside the gums. If you cut the tooth vertically into two equal halves, you will see three main layers inside, right. तो root में कितने layers हैं? Three. What are they? Enamel, dentine and pulp. Just see this diagram here. You need to practice it, right. Right. Enamel, it is the outermost hard white part of the tooth. Enamel क्या करता है? It protects the internal part of the tooth. Then second is dentine. Below enamel lies the hard dentine. It is like a bone. It protects the inner pulp. And pulp is the, it is found inside the, it is very soft and full of nerves and blood vessels, right. यहाँ पे nerves होते हैं, blood vessels होते हैं, and it forms the central part of the tooth, right. तो दांत के क्राउन और रूट दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्राउन वो जो हमको नज़र आता है, रूट वो जो नज़र नहीं आता, जबड़े के अंदर होता है। रूट के तीन पार्ट होते हैं, सबसे बाहर का इनामल जो कि बहुत ही हार्ड होता है, उसके अंदर डेंटाइन, और सबसे अंदर पल्प, राइट। द पिंक कलर्ड गम होल्ड्स द टूथ टाइटली एट वन प्लेस, ठीक है बच्चों। सो आई स्टॉप today's session here, right, because otherwise you have to learn a lot of things in this, बहुत कुछ आ चुका है। you need to practice diagrams also, basically फर्स्ट ये डायग्राम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ का, ये आपको लेबलिंग के साथ बनाना आना चाहिए, और इनके पार्ट्स के फंक्शन, राइट। होमवर्क विल बी सेंड टू यू। थैंक यू चिल्ड्रन।